Hello students, I Soham Chaudhary, lecturer Civil Department, Pravin Patel College of Diploma Engineering and Technology, will teach you a new chapter that is continuous beam. So, in introduction, we must know what is meant by continuous beam. A beam which is supported on more than two supports is called as a continuous beam. It cannot be said that only two supports. I can say it is more than two supports. So अगर आपके पास एक बीम है जिस जो कंटिन्यूसली आपके पास आइदर थ्री सपोर्ट्स, फोर सपोर्ट्स, फाइव सपोर्ट्स एंड सो ऑन, जितने भी सपोर्ट्स हो, इट शुड बी मोर देन टू सपोर्ट्स. So over here you have been shown with two span continuous beam and three span continuous beam. So in continuous beam, for the analysis of continuous beam, we have a formula or we have a theorem which is known as three moment theorem or Clapeyron's theorem. The theorem states that for a two span continuous beam having uniform moment of inertia supported at A, B and C and subjected to any external loading, the support moments MA, MB and MC at the support A, B and C respectively are given by the relation MA_L1 plus 2MB L1 plus L2 plus MC L2 is equal to minus 6A1 x1 bar upon L1 minus 6A2 x2 bar upon L2, where L1 and L2 are the length of the span AB and BC respectively. A1 is area of moment diagram for the span AB and A2 is the area of moment diagram for span BC. X1 is the CG of moment diagram from the left end A and X2 is the CG of the moment diagram over span BC from the right end C. Suppose now you are having with a different moment of inertia for different span, then the Clapeyron's theorem for three moment can be written as MA L1 upon I1 plus 2MB L1 upon I1 plus L2 upon I2 plus MC L2 upon I2 is equal to minus 6 A1 x1 bar upon L1 I1 minus 6 A2 x2 upon L2 I2. तो यहाँ पे हर एक जगह पे L के नीचे उसको I से डिवाइड कर दिया है, where I1 is the moment of inertia of span AB and I2 is the moment of inertia of span BC. So this is the moment diagram if you are having a simply supported beam and UDL is acting on it. So for span AB and BC, if the intensity of UDL is different, then you will be getting different magnitude for the movements and the height will vary. So here it is shown that they have superimposed the diagram, that is mu diagram and mu dash diagram, as we have learned in chapter number 3. So now let's start with the problem. A beam ABC is supported at A, B and C such that AB is equal to 6 meters and BC is equal to 5 meters. AB carries an UDL of 30 kilonewton meter and BC 25 kilonewton meter. Calculate the support moments. तो अभी आपको ये क्वेश्चन में एक कंटिन्यूस बीम दे दिया है ABC का, विच इज सपोर्टेड एट A, B and C. तो आपके पास तीन सपोर्ट्स है. स्पैन AB 6 मीटर्स का है, स्पैन BC 5 मीटर्स का है. AB पे 30 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL एक्ट कर रहा है और BC पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL एक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले आपको मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा और यहाँ पे जो मोमेंट डायग्राम बनेगा इन केस ऑफ UDL आयनों की सेमी सर्कल बनता है. तो दोनों केस में सेमी सर्कल बनाने के लिए आपको उसका बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे पता होना चाहिए. तो फॉर UDL आई हैव अ फॉर्मूला दैट इज WL स्क्वायर बाई 8. तो AB के लिए W आपके पास 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, स्पैन 6 मीटर्स है, डिवाइडेड बाई 8. तो 30 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो 135 किलो न्यूटन मिलता है, किलो न्यूटन मीटर मिलता है. BC के लिए सिमिलर सेम फॉर्मूले से 78.125 किलो न्यूटन मिलता है. नेक्स्ट हमको 6A x bar L कैलकुलेट करना है. तो A इज नथिंग बट द एरिया विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2/3 B इंटू H. तो 2/3 B आपके पास 6 है, H आपने अभी कैलकुलेट किया 135, तो दिस बिकम्स 540. सिमिलरली x2 के लिए A2 के लिए जब आप करोगे तो इट बिकम्स 2/3 इंटू 5 इंटू 78.125 विच इज़ 260.42. अभी आपको x1 बार कैलकुलेट करना है.
वेन एवर द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, अब यूडीएल है वो सेंटर पे ही एक्ट करेगा, तो जब वो जो भी लोड अगर सेंटर पे एक्ट करता है तो एक्स बार इज हाफ ऑफ द स्पैन। तो अगर आपके पास फर्स्ट केस में दैट इज ए बी के केस में स्पैन 6 मीटर्स है तो वहाँ पे एक्स बार 3 मीटर्स हो जाएगा, दैट इज 6/2। इन सेकेंड केस में इट इज़ 5 मीटर्स, सो इट विल बी 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड 6a2 x2 bar upon L2 and 6a1 x1 bar upon L1. You have to just substitute this values in the three moment theorem equation, that is ma L1 plus 2mb L1 plus L2 mc L2 is equal to minus 6a1 x1 bar upon L1 plus 6a2 x2 bar upon L2. I have taken minus as common. तो अब यहाँ पे आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास a1 x1 भी अवेलेबल है, L1 भी अवेलेबल है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा सपोर्ट मोमेंट्स। नाउ अगेन ओवर हियर आई नो कि मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट सी विल बी ज़ीरो। अगर आप डायग्राम देखते हो तो आपको डायग्राम से पता चलेगा कि एम ए और एम सी ज़ीरो है। नाउ जब अब तक जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंगली एम बी भी ज़ीरो होना चाहिए, बट इन दिस कंटिन्यूस बीम दैट्स ओनली व्हाट वी आर स्टडिंग कि एम बी पे मेरा मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि बीम कंटिन्यूस है, तो बी सपोर्ट पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा ही आएगा, और कितना मूवमेंट आएगा वही हम इस सम से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए पे ज़ीरो है तो एम ए एल वन वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, सी पे ज़ीरो तो एम सी एल टू वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी जो भी बचेगा आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एम बी इज इक्वल टू माइनस 109.15 किलो न्यूटन मीटर विच इज़ एम बी इज इक्वल टू 109.15 किलो न्यूटन मीटर and it is hogging in nature. This was your first sum. Moving ahead, now I have given with a sum. In the last sum we saw that you were having only two span, that is AB and BC. Now over here I have three span. तो अभी इसमें क्या चेंज आएगा वो हमें स्टडी करना है, प्रोसेस वही फॉलो करना है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस विच वी नीड टू इनकॉर्पोरेट in this sum. So now you are given with a continuous beam loaded as shown in the figure. Draw the bending moment diagram for this beam by using three moment theorem. तो देखो आपके पास A और B जो स्पैन है उस पर 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सेंटर में। B से C अगर आप चेक करोगे तो आपके पास एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 50 किलो न्यूटन का, बट इट इज़ नॉट एक्टिंग एट द सेंटर। एंड C से D आपके पास UDL एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। नाउ आपके पास आपको पता है जो मोमेंट डायग्राम बनेगा, सेंटर पे पॉइंट लोड है तो ट्राइंगल बनेगा, इसेंट्रिक लोड है तो भी ट्राइंगल बनेगा, बट जो उसका अपेक्स रहेगा वो बिलो द लोड होगा, और सी डी जहाँ पे यूडीएल है वहाँ पे आपका सेमी सर्कल बन जाएगा। तो फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट एम ई एम एफ एन एम जी। तो एम ई विल बी डब्ल्यू एल बाई 4, एम एफ विल बी डब्ल्यू ए बी बाई एल एंड एम जी विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे आपने सेंटर पे मूवमेंट कैलकुलेट मतलब अंडर द पॉइंट लोड और सेंटर पे मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लिया। तो एम ई आपको मिल गया 60 किलो न्यूटन मीटर, एम एफ आपको मिल गया 93.75 एंड एम जी आपको मिल गया 45 किलो न्यूटन मीटर। नाउ आई नो द मूवमेंट थियरम, थ्री मूवमेंट थियरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू स्पैन्स एट ए टाइम। आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ दो स्पैन के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी और बी सी कंसिडर करना पड़ेगा पहले केस में। सेकेंड केस में हम बी सी एंड सी डी कंसिडर करेंगे। तो व्हेन आई कंसिडर एम ए सॉरी स्पैन ए बी एंड बी सी, आई विल से दैट मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये फ्री मूवमेंट है। नाउ एम सी अगर सिर्फ ए बी और बी सी होता तो सी पे भी मूवमेंट 0 होता, बट नाउ यू आर हैविंग अ स्पैन अहेड ऑफ सी दैट इज स्पैन सी डी, तो सी पे भी मूवमेंट 0 नहीं होगा। तो ओनली मूवमेंट एट ए विल बी 0 इन केस ऑफ स्पैन ए बी एंड बी सी। तो अभी आप ये स्पैन पे थ्री मूवमेंट थियरम अप्लाई करोगे तो नाउ दिस बिकम्स एम ए एल वन प्लस 2mb L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू माइनस 6a1 x1 बार अपॉन L1 माइनस 6a2 x2 बार अपॉन L2। तो अगर आपको A1 कैलकुलेट करना है तो A1 भी ट्राइंगल है, दिस बिकम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। A2 वो भी ट्राइंगल है, दैट इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फर्स्ट केस में आपका बेस 6 मीटर्स है, हाइट 60 है। सेकेंड केस में आपका बेस 8 मीटर्स है,
हाइट 93.75 है, तो यहाँ से आपके पास A1 और A2 का वैल्यूज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको x1 और x2 भी कैलकुलेट करना है। तो x1 अगेन द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, तो इट विल बी L/2 दैट इज 6/2 विच इज एट 3 मीटर्स। नाउ फॉर दिस, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा एक सिमिलर सम आपने थर्ड चैप्टर में भी सीखा है। तो ओवर ईयर आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ से हमको ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट F है वो किसके पास में है, A के पास में है कि C के पास में। तो नाउ इट इज़ नियर अबाउट C, सो नाउ ओवर हियर आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला B प्लस L डिवाइडेड बाई 3। अगेन आई विल रिपीट, ये जो पॉइंट लोड है F वाला वो इसेंट्रिक है, तो आपको उसका डिस्टेंस A से भी चेक करना है कि A से उसका डिस्टेंस कितना है। तो आई विल से कि A से उसका डिस्टेंस 9 मीटर्स पे है और फ्रॉम C उसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर्स पे है। तो नाउ दिस विल बिकम कि वो B से ज़्यादा पास में है आपका। अगर स्पैन BC कंसिडर करोगे तो A विल बी 3 मीटर्स एंड B विल बी 5 मीटर्स, सो आपका वो 5 मीटर्स पे है। तो इट बिकम्स B प्लस L डिवाइडेड बाई 3, तो उसका जो x बार होगा इट विल बी 5 प्लस L दैट इज़ 5 प्लस 8 13 बाई 3। तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 6A2x2 अपॉन L2 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, BC एंड CD। तो जब आप BC एंड CD से कंपेयर करोगे तो वो जो पॉइंट लोड F है इट इज़ नियर अबाउट टू B। तो नाउ ओवर हियर इट बिकम्स A प्लस L डिवाइडेड बाई 3। तो A आपके पास 3 मीटर्स है, L आपके पास 8 मीटर्स है, तो 11 डिवाइडेड बाई 3 ये आपका CG होगा सेकेंड केस के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटर में जो स्पैन है दैट इज़ BC, उसके लिए आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ है x बार के लिए। वन व्हेन द केस इज AB एंड BC, सेकेंड व्हेन द केस इज BC प्लस CD, BC एंड CD। तो ये सब आप कैलकुलेट करने के बाद दो इक्वेशंस रेडी करोगे। तो इक्वेशन जब आप रेडी करोगे तो आपके पास MC का एक आपको इक्वेशन मिलेगा 28 MB प्लस 8 MC इज इक्वल टू माइनस 17858.75। सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा 8 MB प्लस 28 MC इज इक्वल टू माइनस 1571.25। तो यहाँ से आप ये जो दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और MB और MC का वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे। तो फाइनल कैलकुलेशंस के बाद आपके पास MB का वैल्यू आ जाएगा माइनस 50.92 किलो न्यूटन मीटर और MC का वैल्यू आ जाएगा माइनस 41.58 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस वाज योर सम। इसमें कुछ अलग नहीं किया हमने, सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर आपका मिडिल स्पैन पे इसेंट्रिक लोडिंग है तो यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट x बार आएगा फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस। Let's move to the next sum, that is a continuous beam of flexure rigidity is fixed at A and supported over B and C such that AB is equal to 8 meters and BC is equal to 6 meters. A UDL of 12 kilonewton per meter acts on AB and a point load of 48 kilonewton acts at the center of BC. Using Clapeyron's theorem, calculate the support moment and draw BMD. अभी आपके पास यहाँ पे भी कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है दैट इज़ ABC, बट आपको जो सपोर्ट दिया है A पे दैट इज़ फिक्स सपोर्ट। तो नाउ दिस क्लैपेरियंस थियरम इज नॉट फॉर फिक्स सपोर्ट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं थोड़ा सा ये जो बीम है ये सपोर्ट हटाने के लिए बीम को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो फिक्स सपोर्ट है उसको हटा दिया और सिंपली सपोर्ट किया और एक पार्ट एक्सटेंड कर दिया। तो A के पीछे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि A0 आ जाएगा और उसका जो लेंथ होगा दैट बिकम्स L0। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास वापस से 3 स्पैन का कंटिन्यूस बीम आ गया दैट इज़ A0A एंड AB फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन में AB एंड BC आ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आ जाएंगे तो दो इक्वेशंस आ जाएगा। वापस से वो दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देंगे। नाउ ओवर हियर जो L0 A0 है वो इमेजिनरी है तो उसका वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ज़ीरो रहेगा, तो इट वोंट चेंज एनीथिंग इन योर न्यूमेरिकल। सो नाउ आई कैन सी दैट ऑन स्पैन AB यू हैव गिवन विद द UDL ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर एंड BC पे 48 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। तो मोमेंट एट D विल बी
WL²/12 एंड एट E विल बी WL/4। तो दोनों के मिड स्पैन पे मोमेंट मिल गया हमको 96 और 72 किलो न्यूटन मीटर रिस्पेक्टिवली। नाउ आई सेड कि आपके पास दो स्पैन है, एक इमेजिनरी स्पैन A0 है और दूसरा AB है फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो जब आप 6A0 x0 अपॉन L0 कैलकुलेट करोगे तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि A ज़ीरो है, X ज़ीरो है, L ज़ीरो है, तो कुछ नहीं, उसका वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा। सिमिलरली आप जब 6A1 x1 अपॉन L1 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एरिया कैसे आ जाएगा 2/3 B इंटू एच, और एक्स बार क्या आएगा उसका सेंटर। किसका सेंटर? स्पैन का सेंटर। तो स्पैन आपको 8 मीटर्स दिया तो उसका एक्स बार 4 हो जाएगा। थर्ड केस में आपके पास एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वापस लोड सेंटर पे एक्ट करे तो x3 भी क्या होगा, जो भी स्पैन दिया हुआ है, स्पैन आपको दिया हुआ है 5 मीटर्स, तो इट बिकम्स 5/2। सॉरी, स्पैन आपको दिया हुआ है 6 मीटर्स, इट बिकम्स 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन जब आप करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2MA + MB इज इक्वल टू -192। सेकेंड कंडीशन जब आप करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा MA + 3.5 MB इज इक्वल टू -273। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली you will get MA is equal to -66.5 kilonewton meter and MB as -59 kilonewton meter and MC will be 0. So this is the sum. Look, in all the three sums we have followed same sequence, but आपको सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा है, लोडिंग कंडीशंस के हिसाब से मेरा मूवमेंट का वैल्यूज़ चेंज हो रहा है। मूवमेंट के वैल्यूज़ के हिसाब से आपका एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया अगर आपको मिल जाएगा तो आपको सिर्फ वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मोमेंट्स रिक्वायर्ड।